Welcome everybody. I'm hoping that you're all excited for the first finance session. Anybody who wants to pursue finance, in the future, getting inside the B school or maybe later on in their careers, this session and the series of sessions are going to be very important. Let me invite, the host for tonight. Okay, let's welcome. You already know Ayush. Ayush, how you doing today? Hello, very good evening, boys and girls. Hi, I'm doing good. Thank you so much, Bhaiya. I hope you're doing good as well. I'm doing absolutely fantastic. I think we've lost count so many times we've done this together. So let's do this once again. Ayush and I we've been doing the finance sessions for quite a lot of time now. Ayush, first of all, let me quickly ask you, one question on behalf of everybody. A little bit about your journey, at IIM in terms of finance. How did you get the inspiration that you have to do finance? How did you get this idea that finance करना है? So, firstly, I'll just tell you about my background pre-MBA. So, I had commerce with mathematics in my school. Post that, I joined Kirodimal College, University of Delhi, and I have done my economics majors from there. And I had some papers from BCom as my electives. So, I mean, there was always kida to study about finance. I was decently good enough in those accounting papers which we studied in plus two. Plus, economics had a lot of financial aspects. I mean, you will be able to correlate economics and finance really well once you start studying both the lectures in parallel. You see that there is some coherence. So that was the basic instinct which motivated me. Secondly, I always loved, reading about balance sheets, P&L. कुछ नहीं भी समझ में आता था तो at least whatever I had, studied in my plus two उसके knowledge पे भी I used to, see some ratios, analyze it. And thereafter in MBA, it came as a natural, progression to study finance papers. Although my internship was in pure play marketing domain, I did my internship from ITC in the foods business division of Sunfeast, Mom's Magic, if you guys know. However, I believe that so that was a shift when when I started, also studying about marketing strategy besides finance. However, in the first three terms of MBA, you would be, in a very good shape to know about the finance, the basic terms which will help you in building your career. And irrespective of whatever you guys do, you guys study HR, marketing, strategy, anything, finance will always be useful. And trust me on this, guys, like the topics which we are going to study today in the upcoming 2, 3 sessions on finance, we are actually covering your term one, term two, and term three, actually. So, तुम्हारा summers का भी preparation, you can use always these materials as your preparatory materials for summers and internship. Talking about whatever domain you choose, I mean, the you should know, what are the cost centers of a company, कहाँ से company पैसा बना रहा है, कहाँ खर्चा हो रहा है. So balance sheet और P&L का तो knowledge is very important, right? अगर marketing भी करते हो तो you guys would be, sole responsible, you would be the profit centers, पैसा तुमसे निकलेगा because you would be into sales and all. If you guys are into consulting, again, you have to do a lot of things besides, consulting is not only about reading about strategy. You have to do a whole lot of things. I am currently working in the EY Parthenon as a senior consultant now. So again, ये सारी चीजें बहुत काम आती है, especially when you start, pitching for different companies for different proposals. उसके बाद तुम उनका P&L एनालाइज करोगे और वो you wouldn't only be seeing the balance sheet, but वो पूरा जो एनुअल रिपोर्ट आता है 400 पेज का, यू हैव टू टेक आउट क्रस्ट फ्रॉम दैट, प्रिपेयर अ डेक, एंड वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट लगता है. सो इररेस्पेक्ट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू डू, finance का knowledge is really really helpful and important for your career. Again, you would be also managing your personal finance once you start earning, and some sort of a savings investment, ये सब भी तुम्हें जानकारी होना चाहिए. तो ये सब चीज मोटा मोटी we would be covering besides the basic stuff. Yep. I think that's I believe quite insightful, Ayush. How many people have a commerce background here? People who are right on the footsteps of Ayush. People who have some background of finance. Are in that direction for sure.
And I'm sure then there are people like me also who have no idea about finance, starting when I was actually preparing, in this journey at a point in time where you are at this point in time. I was absolutely clueless, no idea about finance. So I think for all the people who are, like me, engineers, जिनको कोई आइडिया नहीं है finance का, I will try and simplify it for you. Okay, so the reason why we both of us do it, because always in a session there are people who have some background of finance, and Ayush represents those people, and I represent the people who are absolutely clueless, no idea about finance, and I'd sort of simplify in the layman terms as to what does it mean. See, primarily I have worked in the finance domain very briefly, but the reason why I did finance is primarily to understand and manage personal finances. Correct. That's the that's exactly the reason why when I was doing finance, I did not think that I'm going to be an investment banker, or I want to get into a financial consulting kind of a role. I was thinking that I should be able to manage at least personal finances very well. Okay, and trust me on this, I was able to do it. I was able to get out of my education loan within a couple of years right after my B school. Okay, that is something which is an aspiration for a lot of people, but I truly believe I was able to do it because I was able to understand all these things at a granular level, and thanks to all my faculties at IIM Lucknow, who were instrumental in effectively sort of creating that spark out of nowhere, because I had nothing to do with finance when I sat in my first finance class, and I got so inspired that I believed that I should pursue finance as my majors. So that's a little bit about my story. In fact, I presented the same story at NMIMS yesterday, wherein I was taking a session and people were very surprised to know as to how managing personal finance or understanding finance can really create a difference in your life. Correct. So I would truly recommend everybody, even if as Ayush correctly pointed out, even if you have got nothing to do with finance, you should understand it. Okay, you should understand it. For now we will be covering the basics, but then once you get inside the B school, sit through the sessions. Don't think कि भाई मैं marketing मुझे करना है तो मैं क्यों ये सब session फालतू में करूँ. That's something which is very, very important. Madhav is saying, did you have some side income in college or right after you got out of B schools? Madhav, multiple side incomes. Okay. And I joined Pros Postcat. Okay. So, I was actually doing music. I was actually doing music, in various pubs at Lucknow. So I was actually performing and I was doing music gigs in Lucknow. That was one. I was actually, I had won approximately 4 to 5 major case competitions, gave me approximately 3.5-4 lakh rupees straight. So that was one big element. That's there. Beyond that, I also received scholarship for the first 3 terms at IIM Lucknow, as I was amongst the top 3 of my class consecutively for first 3 terms there. That also gave me some income in terms of helping me get my reduce my loan, and also because the fact that I was really aware of that education loan. As soon as you start, you get into the B school and the clock is ticking. Why a lot of people believe कि मेरा education loan मुझे actually मेरे को actually 2 साल के बाद affect करता है, but that is not true, right? Your education loan का interest starts from the moment it is disbursed. Okay, not disbursed, but primarily when the amount hits the account, right? So I believe one truly important element is to be aware of these elements. ठीक है, मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता है. Maximum log, once they start getting into the corporate, they do not think about फाइनेंस और मैनेजिंग फाइनेंस वेल. टैक्सेशंस को कैसे मैनेज करना है, कितने साल में लोन पे बैक करना चाहिए. उनको लगता है कि टैक्स रिबेट मिलता है, ठीक है, तो लोन को रहने दो, बट कब तक मिलता है ये किसी को, बहुत मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता है कब तक मिलता है. उसके अलावा व्हेन यू स्टार्ट पेइंग बैक योर लोन्स, you have to understand how and how should you pay it back, how should you optimize your taxes.
एटीसी, एटीसी टैक्स एग्जेम्पशन में क्या आता है, एटीडी टैक्स एग्जेम्पशन में क्या आता है, एटीई टैक्स एग्जेम्पशन में क्या आता है? करेक्ट, व्हाट ऑल आर दीज टैक्स एग्जेम्पशंस? आपका जो रेट है वो फ्लोटिंग है कि फिक्स्ड है, मंथली है कि क्वार्टरली है कि एनुअली है? you know you have to understand this primarily, so that once you get inside the B school, you should negotiate for the rates. ठीक है, तुम जाते हो, you go, buying a pair of shoes, you start negotiating कि कुछ डिस्काउंट मिलेगा क्या? इधर 8% का 8.25% हो जाता है, तुम कुछ बोल ही नहीं रहा है, तुम सोच रहा है कि ये तो एहसान कर रहा है मेरे ऊपर लोन देके। तो that's not true. You have to start thinking about this. That's something which is very very important for me personally. Finance is something which has been truly magical, and I thoroughly enjoy. I'm a student of finance, and I share some of my experiences, as we go along. Okay, so we have Ayush, who's the master, I am the student, and then let's get on with this very amazing journey of finance to help understand and develop some spark. Primarily, we are not to sort of teach you finance, but to create that spark so that we can all move forward and take up finance as one important element going forward. So Ayush, where do we start? How do we start? What do you think we should start with? Uh, so the basic finance, I think the very first thing which we study about is what is income, what is expenditure. Thereafter, we progress to P&L. So let us see some responses. I think that would be good if whatever understanding these guys have currently. Okay. However, सही या गलत is something which will be corrected in the later stages. But however, एक बार let's see how is the pulse today. Absolutely. Absolutely. Ananya is saying already started building rapport with bank managers, need the best rates. जिनका बैंक मैनेजर से सबसे अच्छा रैपो होता है, कटता उन्हीं का है सबसे पहले। ठीक है, ठीक है, दैट्स द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग। ओके, सो रिमेंबर दैट। ऑल राइट, नाउ let me quickly talk about the balance sheet first. सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस शीट के बारे में। As Ayush also mentioned about, anybody who knows what a balance sheet is, anybody from the domain who would want to contribute as to what balance sheet is, what is it used for, what's the entire thought process and objective behind a balance sheet? Yes, Harmans, go ahead. Hello, sir. Good evening, everybody. So, balance in accounting, we measure two types of performances of a business. First is operational, which is measured by profit and loss account. Another is financial position, which we manage by balance sheet. A balance sheet is a summary of assets and liabilities which are owned by a business. And assets and liabilities को हम फिर further bifurcate भी कर सकते हैं। वो financial position बताती है हमारी कि हमारे पास कितने assets है business के पास और कितनी liabilities वो owe करता है। Yes, sir. Yep, yep, yep. Anybody else? Yes, Amal, go ahead. Okay, so since we, I think there is some. Okay, Deepanshu, go ahead. हेलो सर। बेसिकली तो बैलेंस शीट में मतलब एसेट और लायबिलिटीज ही होती है, बट देन वो फर्दर वो हो जाती है, जैसे CWIP, इक्विटी, शेयर कैपिटल, तो वो अंदर जाके बाइफोरगेट हो जाएगा, बट मेनली एसेट और लायबिलिटीज ही होती हैं इसमें बैलेंस शीट में। Okay, okay, all right. Akshit, go ahead. The same, so it's basically assets and liabilities only, and it can be for a specific time period also, say, so for 2024 also. So, Okay, fair enough. Pooja, go ahead. तो मेरे साउंड का इशू था आई थिंक। कोई बात नहीं, बताओ अमल। सर सर अमल, अभी भी इशू है? सर इन वेरी सिंपल टर्म्स, मतलब अगर मैं कहूँ तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है एक तरीके का विच शोज हमारी फाइनेंशियल पोजीशन। तो एसेट्स आर मतलब लायबिलिटीज आर बेसिकली विच वी हैव टू पे टू समबडी। एसेट्स इज व्हाट वी हैव मेड ओवर टाइम। तो बैलेंस शीट जो है उसका समरी होता है।
ठीक है. Okay, Pooja, go ahead. It is a financial statement at a particular point of time which has three components: assets, liabilities, and the equity of the company. And it is required for investors if they want to buy the for mergers and acquisition, so that they can assess the financial health of the company. Okay. Okay. All right. Shrutik, go ahead. Good evening, sir. Am I audible? Yeah, yeah, yeah. Yeah, balance sheet is something that is made for a point of time and shows the financial position. It is based on the accounting equation that is assets equal to liability plus equities. Okay. Kunal, go ahead. Yes, sir. Yes, Kunal. So basically, in any business, we basically measure two things: financial performance and financial position. And the balance sheet basically measures the financial position of any business. That is assets and liabilities. Okay, fair enough. Thank you, everybody, for some very insightful, inputs. And let's go back to Ayush. Ayush, how would you go about it? How did we all do? Yeah. So good responses, guys. Typically, what we see in balance sheet is basically the assets and liabilities. Helps us to analyze how good or bad the business is doing. Also, we as external and internal users basically want to know about the financial performance of a company. If I am an internal user, I am an employee. I definitely want to know कि मेरा अगले साल का बोनस कितना आएगा, आएगा कि नहीं आएगा. It will always depend कि how good or bad my business is doing, my company is doing. Secondly, जो external users होते हैं, जो investors होते हैं, banks होते हैं, जिन लोगों ने कुछ पैसे as a form of capital or loan दे रखा होता है, तो basically they are also interested to know कि how are they performing, company अपने कॉर्पस का क्या यूटिलाइज करती है, कैसे यूटिलाइज करती है, वो सारी चीजें बताती है अ बैलेंस शीट. सेकेंडली, वेरी नाइसली पॉइंटेड आउट कि बैलेंस शीट हमेशा एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे बनता है. एंड जो पीएनएल होता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है, इट इज वो ओवर और पीरियड ऑफ टाइम होता है. बेसिकली एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है. तो बैलेंस शीट हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है. दैट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. एंड जो पीएनएल होता है, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, दैट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट. तो उसमें दो एस्पेक्ट्स होते हैं बेसिकली, विच इज असेट्स एंड लाइबिलिटीज. असेट्स होता है, दीज आर द फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल रिसोर्सेज दैट अ कंपनी ओन्स, राइट. वो कंपनी का अपना होता है, राइट. एंड जो लाइबिलिटीज होती है, वो बेसिकली इट इज अ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन which a company owes to its investors, to its to bankers, to its creditors, so on and so forth, right. Again, talking about the various components, again assets का simple meaning आप ये समझ लो कि assets से we can always generate revenue, right. We can sell off our machinery, we can sell off our furniture, goods, inventory. We can always generate revenue from assets. So we are here. Let's just classify assets को थोड़ा सा हम लोग simplify कर लेते हैं. So majorly there are two classification, मोटा मोटा. There is one thing also called fictitious asset. वो बाद में, it's a very later aspect of the term है. So fixed assets होते हैं वो जो basically जिनका जो हम लोग liquidate एक साल से ऊपर करेंगे, वो immediately we cannot liquidate. Plus the business purchases or owns those assets for a long term perspective. अगर बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, या फिर लैंड हो गया, या फिर इन्वेंटरी नहीं, बट सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो इस टाइप के एसेट्स होते हैं, जो कैपिटल इंटेंसिव एसेट्स होते हैं, वो फिक्स एसेट्स में आते हैं. जैसे कि प्रोडक्शन राइट्स, ये एक टैंजिबल एसेट्स नहीं है, इनटैंजिबल है. एसेट्स का भी डिफरेंट क्लासिफिकेशन होता है. पहला हम लोगों ने सीख लिया व्हाट इज फिक्स एंड करंट. मोर देन 1 ईयर इज फिक्स, लेस देन 1 ईयर करंट. ठीक है, करंट में आपका बेसिकली कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, या फिर आपकी जो स्टॉक्स या इन्वेंट्री होती है, वो भी विद इन अ गिवन अकाउंटिंग साइकिल में एक साल में आपको सेल ऑफ करना रहता है, राइट. इसीलिए हम लोग उसको करंट में डालते हैं. एक और तरह का एसेट होता है, बेसिकली अनदर क्लासिफिकेशन, विच इज टैंजिबल एंड इनटैंजिबल. वेरी लिटरली टैंजिबल whichever you can touch and feel, like a furniture, like a machinery, like a building. इंटैंजिबल हो गया बेसिकली, आप बहुत बार कुछ प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, कॉपी राइट्स होते हैं, पेटेंट होते हैं, ये होल्ड करती है कंपनी. ठीक है, अगर R&D में बहुत ज्यादा वो काम करती है. सेकेंडली,
गुडविल एक कंपोनेंट होता है कंपनी का, वो होता है, दीज आर कॉल्ड इंटैंजिबल एसेट्स. सो दिस इज अनदर क्लासिफिकेशन. सो ये मोटा मोटा दिस इज द डिफरेंस. करंट एसेट्स में, लाइक वी सेड अबाउट, स्टॉक्स आ गया, बैंक अकाउंट रिसीवेबल आ गया, और बैंक में पैसे कितने हैं, बेसिकली जो रनवे आप लोग देखते हो, दैट इज योर करंट एसेट्स. अकाउंट रिसीवेबल इज एंड अकाउंट पेएबल आर वेरी, यू नो, किसी किसी को समझ में नहीं आता है, ये भी तो बहुत ट्रिकी टर्म होता है. अकाउंट रिसीवेबल होता है कि बहुत बार आपने अपनी इन्वेंट्री किसी को क्रेडिट पे बेचा है, कैश पे नहीं बेचा है, तो दैट पर्सन ओज यू मनी, बट यू हैव ऑलरेडी मेड द ट्रांजैक्शन, राइट? सो उन सब का समेशन करेंगे, तो आप जितने लोग आपको अमाउंट ओ करेंगे, उसका जो समेशन आएगा, दैट कम्स अंडर अकाउंट्स रिसीवेबल. और उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता है अकाउंट्स पेबल, जो लाइबिलिटी साइड में होता है, कि बेसिकली मैंने एज अ फर्म, एज अ बिजनेस, मैंने कुछ इन्वेंट्री हो गया या फिर कुछ और भी असेट्स मैंने कुछ ओन किए हैं, जो कि मैंने क्रेडिट पे किया, मैंने इमीडिएट कैश पेमेंट नहीं किया. बिजनेस में ऐसा होता है, एफएमसीजी में बहुत होता है ये, या किसी भी तरह में, कि यू टेक ऑल द, सपोज आपका बिस्किट का शॉप है, आप आईटीसी से और बाकी ब्रिटानिया वगैरह से बिस्किट लेते हो, राइट? आप इमीडिएट सेम डे तो पेमेंट नहीं करते हो, 14 दिन का, 28 दिन का, 21 दिन का, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी पॉलिसी एंड योर बार्गेनिंग पावर. एक क्रेडिट साइकिल तय होता है, उसी दौरान पैसे पे करने रहते हैं. तो जब तक हम लोग पैसे जितना अमाउंट पे नहीं किया, दैट बिकम्स माई पेएबल, अकाउंट्स पेएबल, विच इज अ लाइबिलिटी. पे तो नहीं किया है बट पे करना है, बिकम्स अ लाइबिलिटी. आई ओ दैट मनी टू समवन. लाइबिलिटी साइड में आ जाते हैं. सो इक्विटी. इक्विटी बेसिकली जो ओनर्स या शेयर होल्डर्स कैपिटल होता है, जो कि स्टेक कंपनी में होल्ड करते हैं. अगर सोल प्रोप्राइटर हो तो इट बिकम्स इक्विटी. अगर पब्लिक कंपनी है तो उसमें इक्विटी शेयर्स होते हैं, राइट? प्रेफरेंशियल शेयर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के शेयर्स होते हैं, वो इक्विटी पे आता है. लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज. तो लोन जो हो गया, जो हमने बात की थी, आई ओ मनी टू द बैंक, इट बिकम्स liability component, again accounts payable, like we discussed. So this is the overall summary of a balance sheet, जो कि basically we call it the ABCD, कि इतना understanding should be clear before we proceed further. Yeah. So I'll quickly summarize. So एक दो questions भी आ रहे हैं, उनको भी ले लेते हैं. So मैं saying कि उस क्रेडिट साइकिल में इंटरेस्ट लगता है या नहीं. So मैं इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं, ये तुम्हारा टर्म ऑफ द ट्रेड पे डिपेंड करता है. ठीक है, इंटरेस्ट लग भी सकता है, इंटरेस्ट नहीं भी लग सकता है, डिपेंड्स अपॉन हाउ इज योर ट्रेड स्ट्रक्चर्ड. ठीक है, पर आई एम होपिंग कि सबको समझ में आ गया होगा कि जो मुझे पैसे रिसीव करने हैं वो क्या हो जाएगा, अकाउंट्स रिसीवेबल. कि मैंने फॉर एग्जांपल मान लो, जनरली क्या होता है कि मार्केट में आप पहले माल दे देते हो, फिर पैसा बाद में आता है. ठीक है, दैट्स हाउ इट हैपन जनरली. अगर मैं टिपिकली एफएमसीजी का एग्जांपल लूँ, तो आप पहले देते हो, फिर बाद में आप मनी रिसीव करते हो, तो वो अकाउंट्स रिसीवेबल में आ जाता है. करेक्ट. And primarily if I talk about your the accounts payable, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे वेंडर से मैंने गुड्स लिया हुआ है, तो मुझे उसको पैसे देने, तो वो मेरा पेएबल हो जाएगा. आई एम होपिंग यहाँ तक सबको समझ में आया होगा. ठीक है. अच्छा, अब एक दो इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ. करंट लाइबिलिटीज़ क्या होता है रुपेश? बहुत सिंपल है कि जो भी करंट है, मतलब बेसिकली इन लेमैन टर्म्स अगर हम बात करें, वैसे दो तीन मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस भी हैं इसके. ठीक है, जिसको हम ऑपरेटिंग साइकिल या ओवरऑल तुम्हारा जो पूरा का पूरा इन्वेंट्री साइकिल होता है. उसके अलावा अगर सिंपल एक साल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, तो जो भी विद इन एक ईयर मेरे को जो लाइबिलिटीज हैं, मान लो फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म लोन है जो 6 महीने में वापस करना है, ये क्या है? करंट लाइबिलिटी है. ठीक है, मैंने किसी से फॉर एग्जांपल स्टॉक लिया हुआ है, स्टॉक सेल करके मुझे उसको पैसे देने हैं. ठीक है, तो जो मुझे पैसे देने हैं, ये क्या है? ये करंट लाइबिलिटी है. ठीक है, तुम्हारा नॉन करंट या फिक्स्ड लाइबिलिटी क्या होगा? जो फॉर एग्जांपल मैंने मान लो 5 साल के लिए लोन लिया, 10 साल के लिए लोन लिया, तो ये क्या हो जाएगा? फिक्स्ड लाइबिलिटीज हो जाएंगे. यहाँ तक आई एम होपिंग कि सबको समझ में आया होगा. ठीक है ना? जैसे कि एजुकेशन लोन क्या है? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी नहीं है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है. ठीक है, आप उसको शॉर्ट टर्म बना सकते हो, बट बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म में नहीं बना पाओगे. करेक्ट, क्लियर है? यहाँ तक आई एम होपिंग के सबको समझ में आया होगा. चलो आओ प्रदीप से एक क्वेश्चन लेते हैं. प्रदीप का क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है. प्रदीप, गो अहेड. हाँ सर, वो am I audible सर? यस यस, ये तुम्हारा क्वेश्चन है. नेट नहीं चल रहा है. नहीं, ये क्वेश्चन नहीं था मेरा. क्वेश्चन क्या है?
ये इक्विटी वाला जो सेक्शन में हमने लिखा है, वो जो फार्मर कैलकुलेटर करके, वो हम लोग उसको फिक्स असेट में या करंट असेट में क्यों डाल सकते हैं? मतलब उसको असेट साइड में क्यों डाल सकते हैं? किसको किसको? ये जो इक्विटी है, हाँ इक्विटी हाँ, तो कंपनी का होता है, राइट? वो तो इक्विटी जो है, सो या ये असेट ही हुआ ना उसका। Should I should आयुष I? राइट। So basically एक कॉन्सेप्ट होता है प्रदीप, गुड क्वेश्चन। अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी। अभी तुम फाइनेंस पढ़ोगे तो वो उसका थ्योरी होता है, तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स पढ़ने होते हैं। उसमें एक प्रिंसिपल का नाम होता है अकाउंटिंग एंटिटी, जो सिंपली ये कहता है कंपनी और बिजनेस इज इंडिपेंडेंट एंटिटी देन दैट ऑफ इज ओनर। तो ओके। बेसिकली अगर आप ओनर है और आप कुछ सपोज 10 लाख रुपए लगा के एक अपना QSR, किसी का फ्रेंचाइजी ले लिया बर्गर सिंह का, ठीक है, तो आप कुछ 10 लाख रुपए लगाते हैं बिजनेस में, कैश बिजनेस में आ गया, ठीक है, और आपने 10 लाख रुपए एज एन ओनर इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, तो वो एज अ लाइबिलिटी कहा जाएगा कंपनी के लिए, बिकॉज वो कंपनी का खुद का पैसा नहीं है। इवन जो प्रॉफिट भी होता है जो कि बिजनेस कमाएगी, वो भी किसका है? शेयर होल्डर्स का है, ओनर्स का है, वो कंपनी का नहीं है। तो कंपनी और इन्वेस्टर या फिर ओनर या फाउंडर, बोथ आर सेपरेट, इसलिए कंपनी के लिए वो लाइबिलिटी कहलाता है। या सो बेसिकली टू ऐड टू दैट, प्रदीप देखो बहुत सिंपल बात है, ठीक है, तुम ओनर है, ठीक है, तुम अलग है, कंपनी अलग है, तुमने इफेक्टिवली कंपनी में मान लो $65 लगाया, नाउ कंपनी ओज दिस मनी टू यू, करेक्ट? तो कंपनी के लिए क्या हो गया? लाइबिलिटी हो गया। समझ में आया? कंपनी को वो पैसे तुझे वापस देने पड़ेंगे बिकॉज तुमने कंपनी में इन्वेस्ट किया है। कंपनी और ओनर या कंपनी प्रमोटर अलग अलग एंटिटीज है, अलग इन सेपरेट एंटिटीज। इसीलिए इक्विटी भी एक फॉर्म ऑफ लाइबिलिटी ही है। ओके। ओके, क्लियर है यहाँ ओके, तक? आई एम होपिंग कि समझ में थैंक आया यू। होगा। थैंक यू। ठीक है, तो आपका इफेक्टिवली ये आपका, क्योंकि उसने इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपका वो हो गया। अच्छा, ओके, यहाँ तक आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। ओके, क्लियर। इवन कंपनी एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे सकती है। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है आपका और सपोज 2-3 पार्टनर्स ने कुछ कुछ अमाउंट लगाया है बिजनेस में, तो इट कैन ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द पार्टनरशिप डीड, अगर वो पार्टनरशिप डीड कहता है कि 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो वो देना है, बिकॉज क्योंकि इनिशियल फेज में शायद तुम्हारा बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं होगा, तो अर्निंग तुम्हारी जीरो हो जाएगी, राइट? सो कुछ तो होना चाहिए। तो पार्टनरशिप डीड में बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि दे फिक्स सम अमाउंट की एज अ परसेंटेज ऑफ X% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले, तो वो है कि तुम्हारा एक तरह का अर्निंग हो जाएगा, एंड दैट विल बिकम एन एक्सपेंस ऑफ योर बिजनेस, यानी प्रॉफिट और कम होगा या नुकसान और बढ़ जाएगा। कभी कभी क्या होता है, ओनर्स या पार्टनर्स सैलरीज और कमीशंस भी लेते हैं, बट अगेन दैट बिकम्स एन एक्सपेंस ऑफ द कंपनी, तो प्रॉफिट रिड्यूसेस फर्दर। बट ये डीड पे डिपेंड करता है, तुम्हारा वो डीड वैसा वो स्ट्रक्चर। पेबल में आ जाएगा, राइट? फिर तो हाँ, एज वो ए ओनर पेबल भी होता है। पेबल, राइट? हाँ, और वो पे करना ही पड़ेगा बिकॉज वो बैलेंस शीट का P&L का एक्सपेंस आइटम होता है। ओके, करेक्ट, तो करेक्ट। ऐसा जैसे प्रॉफिट तभी कमाओगे जब प्रॉफिट करोगे, राइट? तो करेक्ट। बट ये मैंडेटरी एक्सपेंस हो जाता है, तो वो एज अ इनकम तुम्हें तो आएगा, बट कंपनी का एक्सपेंस कहलाएगा, इररिस्पेक्टिव तुम ओके। कितना नुकसान। ओके, गॉट इट। ठीक है। या स्नेहाद्रा, गो अहेड। Yeah, sir. हाँ स्नेहाद्रा, Yeah, good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Yeah, sir. Basically, equity is equals to current assets minus liability, right? हाँ, यू कैन से दैट मैथमेटिकली, Okay, अगर सर और टोटल टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। ओके सर, अगर मैथमेटिकली किसी कंपनी का अगर ये जस्ट इक्विटी पार्ट नेगेटिव में आए तो इट शुड बी जस्ट बेनिफिशियल फॉर देम, राइट? इक्विटी पार्ट नेगेटिव में कैसे आएगा? No, I'm saying it's if it's come mathematically. नहीं, पर मैथमेटिकली कैसे नेगेटिव में आएगा, वही सवाल है। Okay, so it should not देखो बहुत possible, right? सिंपल है, तुमने कंपनी में कुछ पैसे लगाए भाई, Okay, करेक्ट? तुमने कंपनी में पैसे लगा दिए, अब जो तुमने अमाउंट लगाया है वो अमाउंट तो तुम्हारा पॉजिटिव ही रहेगा ना। okay, आई हैव आंसर फॉर दिस। यस। क्या होता है कि बिजनेसेस में सपोज तुमने 1 लाख रुपए ऐसा कैपिटल लगा दिया है, राइट? ठीक है, okay,
और यू एज एन ओनर, यू एज अ सोल प्रोप्राइटर, यू कैन ऑलवेज विड्रॉ मनी। धंधा चल नहीं रहा है, उससे अच्छा मैं 50,000 का एफडी करा देता हूँ, ठीक है, 7% तो ओके। आएगा। तो तुमने 50,000 निकाल दिया, उसके बाद देखो बिजनेस चल रहा है, वो रेवेन्यू जनरेट करना है। अल्टीमेटली तुम्हारा कमाई इज योर प्रॉफिट विच इज रेवेन्यू माइनस अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस, करेक्ट। या तुमने पैसे निकाल लिए 50,000, उसके बाद तुमने साल के एंड में देखना कि तुमने 70,000 और निकाल दिए। तुमने लगाए थे कितने, 1 लाख, तुमने विड्रॉ कर लिए 1,20। तो बेसिकली वो ड्रॉइंग्स जो होता है ना, वो ड्रॉइंग्स के रूप में ट्रीट होगा, राइट। एंड वो तुम्हारे कंपनी के एसेट साइड पे आ जाएगा कि आप कंपनी ने लेंड कर दिया पैसे, अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो, ठीक है। ओके ओके ओके, गॉट इट सर। बट यू आर अ वेरी बैड बिजनेसमैन तब तो। ठीक है, so I'm hoping कि ये वाला समझ में आएगा। So yeah, primarily that's how effectively, it will move to the other side because now the company has a receivable, correct? So that is something which will happen. I'm hoping ये वाला सबको समझ में आया होगा। तो ये वाला पार्ट I'm hoping कि क्लियर है, सबको समझ में आया होगा कि बैलेंस शीट क्या होता है। चलो लेट मी आस्क अ सिंपल क्वेश्चन बिकॉज nobody asked this question। ठीक है, लेट मी आस्क अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज अ गुडविल? अभी हमने थोड़ी देर पहले गुडविल के बारे में बात किया था, ठीक है, सब लोग चुपचाप सुन रहे थे एंड नोबडी आस्क्ड अबाउट इट। सो व्हाट इज गुडविल? ओके, लेट मी आस्क धनंजय, गो अहेड। So basically, when a business has been working in a market for a long period of time, it actually develops a reputation over there for its services or products. I think that is what is termed as goodwill. Because if I'm providing exceptional products or services in the market, I will get repeated customers afterwards. नहीं, Those people will buy. but goodwill is a number, right? For example, I'll write Yes, here, sir. तो how do I quantify reputation को quantify कैसे करेंगे? तो उसका एक फॉर्मूला होता था, मैं भूल गया हूँ, लेकिन वो कोई बात नहीं। कैपिटल से रिलेटेड ही होता है। कैपिटलाइजेशन मेथड, प्रॉफिट मेथड। या Okay, let me go back to Harbans. Harbans, go ahead. How do you put a number to that? यस सर, एक मैं आपको बेसिक बताती हूँ। गुडविल टू टाइप्स की होती है, एक तो सेल्फ जनरेटेड होती है, परचेज गुडविल होती है। अकाउंट्स में हम परचेज गुडविल रिकॉर्ड करते हैं। जब फॉर एग्जांपल हमने कोई बिजनेस एक्वायर किया तो हम उसकी एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू इवैल्यूएट करते हैं। अगर हमारा एसेट ज्यादा वैल्यू का होता है लाइबिलिटीज से, तो अगर हमारी तो जो बैलेंस होता है वो गुडविल अमाउंट होता है। सॉरी, असेट अगर हमारी लाइबिलिटी से मतलब समझ सॉरी नहीं आया। सॉरी सो फॉर एग्जाम्पल हमने एक बिजनेस एक्वायर किया, उसकी असेट्स की टोटल वैल्यू थी 1 करोड़ रुपीज और उसकी लाइबिलिटीज की टोटल वैल्यू थी 2 करोड़ रुपीज। मतलब हमने उसको एक्चुअल में, अगर हमने उसको 2 करोड़ रुपीज पे किया तो 1 करोड़ हमने एक्स्ट्रा जो पे किया वो उसकी गुडविल का पे किया, तो वो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं एज एसेट साइड इंटेंजिबल में। Okay, okay, all right. Let us go to Prem also. Yeah, Prem, go ahead. गुड इवनिंग सर। Yeah, good evening. सर गुडविल बेसिकली ये भी होता है कि अगर एक कंपनी एक पर्टिकुलर सेल्स कर रहा है इतने साल बिजनेस करने के बाद, अगर हम उसका कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं तो उस अमाउंट ऑफ सेल हम तुरंत कर पा रहे हैं, उससे भी गुडविल का वैल्यू डिसाइड होता है। कैसे? कि वो अगर हमको उस अमाउंट का सेल्स करना पड़ता तो मेरे को भी अपना 10 ईयर्स का बिजनेस करना पड़ता, पर वो हम विद इन 1 ईयर्स में हम उतना सेल्स कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज गुडविल। So how do you quantify? That's the point. मुझे अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं अगर उसको क्वांटिफाई करना हो तो मैं कैसे क्वांटिफाई करूंगा? देयर आर 2-3 ways राइट नाउ। हाँ, so again, प्रेम, ठीक है, मतलब थॉट प्रोसेस इन द राइट डायरेक्शन, बट बैलेंस शीट में देयर समबडी हु वाज एक्सप्लेनिंग बैलेंस शीट एंड सेइंग कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसका नाम बैलेंस शीट है, समथिंग व्हिच कैन नॉट बी बैलेंस्ड, correct? That is how somebody explained it. So the point is you have to understand, correct, as to how do you quantify. तुम यहाँ पे थियरी नहीं लिख सकता है बैलेंस शीट में, एग्जैक्टली सर। समझ में आया? So I have to put number to it. Okay, let me go to Ashish. Ashish, go ahead. गुड इवनिंग सर। सर, जब एक्विजिशंस होता है तो एसेट माइनस लायबिलिटी करके जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो पे किया जाता है, जैसे प्राइस ऑफ द कंपनी में जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो पे किया जाता है वो गुडविल के तौर पे हम एंटर करते हैं बैलेंस शीट में। एग्जाम्पल बताओ। जैसे कि एसेट माइनस लायबिलिटी करके बैलेंस शीट का 50 लाख रुपीज आया एंड वी
एक्विजिशन के लिए 70 लाख रुपीस पे कर दिया गया, तो जो 20 लाख रुपीस है वो गुडविल के तौर पे ट्रीट किया जाता है। ओके, हमने उसको कितना पे किया? 70 lakhs। यस सर। ठीक है, ठीक है, ओके। ऑल राइट, श्रुतिक, गो अहेड। Sir, like I have another point in this. Like, if there are two products and like the fair market value of the product is let's say 40 rupees, but one company is selling it at 50 rupees and customer is buying that product at 50 rupees. Okay. So that extra 10 that the other company is earning, that is the kind of goodwill that it has created for itself. तो वो अपने बैलेंस शीट में 10 रुपए डाल देगा? नहीं नहीं, of course not sir. Sir, मतलब I might be wrong. I'm 40 रुपए sorry. का सामान है, 50 में बेचा, 10 रुपए बैलेंस शीट में डाल दिया। ठीक है, No, not that way. I'm sorry. ओके। लेट मी गो टू आस्था। आस्था, गो अहेड। Good evening, everyone. Sir, I would like to say that if we put it in simple words, we can say that goodwill is calculated on the basis of profits, because whatever methods we practiced in the goodwill chapter, as I can recall, it was average profit method, super profit, capitalization method. एग्जाम्पल, Everywhere we use profit. आस्था आस्था, एग्जाम्पल। सी, फिनेंस में थोड़ा सा एग्जाम्पल्स चलता जाता है। So, sir, I can recall just one formula for super profit method that I can give as an example. Okay. For goodwill, we used to calculate super profit and multiplication with a certain number of years of purchase. So that's how we calculated. एग्जाम्पल अभी भी नहीं आया। Sir, what example in this? अरे भाई, तुमने अभी भी फॉर्मूला ही बताया है, एग्जाम्पल नहीं है। चलो, लेट्स गो बैक टू टू आयुष सर एंड आस्क हिम के हाउ डू वी गो अबाउट इट। Yeah. So basically, funda बहुत लोगों को पता है, it is generally evaluated or identified during the time of merger and acquisition activity. So basically, if a company is acquiring some other company, it is not only taking its assets but also its liabilities. Correct? Suppose there is a, again, rightly किसी ने बोला था कि when we subtract all the assets minus liabilities, we got a net identifiable asset at the given time of point of time, जो भी इसकी वैल्यू है, राइट? उसके ऊपर what we do is कि sometimes we use some methods कि हम लोग, जैसे there could be multiple companies chasing to acquire a company like a Blinkit or a Dunzo. So just a random example I'm throwing. So they also evaluate कि उसको net identifiable asset से ज्यादा क्या दे सकते हैं. So thereafter we use certain methods जो कि profit, I mean methods का नाम याद नहीं आ रहा, but again जो भी we use some maths, we identify, we arrive at a figure. So whatever extra we pay becomes the goodwill for that company, and वो फिर उसके बैलेंस शीट में शो करता है, ठीक है, whenever we have acquired that other company. Yeah, so I think I'm hoping that part is clear. If I put it in a very simple example, मान लो let's say there is an asset जिसका worth $5 है, it's in this balance sheet scenario. So if let's say there is a $5 worth of an equipment, let's say, and let us say that this is worth more than $5 to me, okay, because in my context it may be more valuable, right? So I would maybe say that let me buy it at $7, okay. So the cost or the worth of that equipment is $5 only. So when I have purchased it, it will come to me and sit under the assets at $5, okay. So it has come and now my bank account has reduced by $7. So now a bank has reduced by 7, so it has come to 3, correct? Now if you actually think about it, the balance sheet is not balancing. Remember, the balance sheet in its complete form should balance out, okay. Now if you think about it, 2 बचा हुआ है, तो ये जो 2 है ये इफेक्टिवली तुम्हारा रिकॉर्ड हो जाता है इन टर्म्स ऑफ गुडविल। तो यहाँ पे गुडविल आ जाएगा तुम्हारा ऑफ $2, समझ में आया? सो दैट इज हाउ दिस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। तो ये बैलेंस शीट में कैसे रिकॉर्ड हुआ, आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। और ये जो आपका जो हाउ डिड इट गो अबाउट बैलेंसिंग दैट बैलेंस शीट,
is something which we have to understand in a very simple and layman terms. Primarily not going into a lot of depth, of doing it, but to put it very simply, that is how it looks like. Okay. Prem, go ahead. So one of the formula that I remembered was a simple average profit method to calculate the goodwill. In that, we have to take the average profit of the firm and multiply with the number of years of purchase. So from that, we can calculate the goodwill of that firm. So Prem, yes, I agree. There are multiple ways of it, but to put it very simply, okay, right now, since we are understanding, a lot of people are starting to learn it from the absolute basics. I'm hoping the basic sense of goodwill is clear, correct? So let's actually stick to that. One more point just to mention. अभी जैसे sir just said कि we have to balance out things, right? जैसे अभी हमारा बैंक अकाउंट से $60 माइनस हुआ है, हमारी असेट $5 के, बट देर इज $2 का मिसिंग है, देन वी क्लासिफाई इट एज गुडविल. सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट बैलेंसिंग स्टफ, तो अकाउंटिंग का एक बहुत प्रोमिनेंट कॉन्सेप्ट है जो हमेशा रहेगा, दैट इज डुअलिटी कॉन्सेप्ट, which means each and every transactions which we record in the books of accounts, which means it has to be of economic value, has to have two aspects, debit or credit. डेबिट नहीं भी समझ में आ रहा है, प्लस माइनस बेसिकली. एक एग्जांपल देके समझते हैं इसी में. सपोज तुमने लैंड एक्वायर किया $5 का, राइट? तो $5,000 का, चलो कम हो जाएगा. तो लैंड तुम्हारा असेट में 5,000 से बढ़ जाएगा, एंड यू हैव पेड वाया कैश, या फिर लोन लेके गया. सपोज कैश से तुम लोग लेते हो, तो हमारा $5,000 से लैंड बढ़ा और कैश 5,000 से घट गया, विच मीन्स द नेट इफेक्ट इज 0. अगर आप लोन लेते तो लैंड आपका $5,000 से बढ़ता और आपका लोन एज अ लाइबिलिटी भी 5,000 से बढ़ जाता. तो दोनों में हमारा बैलेंस से नेट इफेक्ट क्या हो रहा है? 0 हो जा रहा है. बेसिकली इट विल ऑलवेज हैव टू एस्पेक्ट्स एंड द नेट रिजल्ट शुड बैलेंस आउट. दैट्स द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग. अगर ये चीज नहीं होगा तो बैलेंस शीट कभी मैच नहीं करेगा. सो इसीलिए ये चीज कहा जाता है. एब्सोल्युटली. सो ये जो डुअलिटी कॉन्सेप्ट है इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू मेक श्योर दैट वी आर बैलेंसिंग इट. ओके. Okay. All right. Let me take a few cases also. Nikhil, I'll come to your question also. Snehadra, go ahead. Yeah, sir, ये yeah, yeah, बोले लो. Okay. Sorry. कोई बात नहीं. What about me? It's okay. My God. Jatin, go ahead. सर लाइक जो गुडविल में है, आपने बताया कि कोई कंपनी एक्वायर कर रहे हैं तो उसके लिए वो मेंशन हो रही है कि मतलब हमने जितना एक्स्ट्रा पे किया. तो कंपनीज जब अपनी बैलेंस शीट आउट करती है तो वो अपनी गुडविल भी मेंशन करती है कि उनकी करंट गुडविल क्या है, और वो क्या उस सेल्स के नंबर के हिसाब से डिसाइड होती है. लाइक आप कह रहे हो कि एक्चुअल नंबर्स में दिखाते हैं गुडविल. Ayush, would you want to take that? Can you come again? Actually, one more thing, guys, before Tejasvi and Snehal, you guys have an HR review at 10 with me only. So what we'll do is, if you guys are on the call, we'll join immediately once the session ends. So this was for Tejasvi and Snehal. Can you give एक बार देख लो अगर तुम लोग हो, else we'll also write in the group also. Yeah. Also, Yes, we are in this. I'm in this session. Snehal Deshpande. We can conduct it later. yeah, we'll immediately join. ठीक है ना? Alright. What was the question, Jatin? I think. Jatin, go ahead. Right? सर लाइक आपने बताया कि जैसे हम कोई कंपनी एक्वायर कर रही है, कोई बड़ी कंपनी, तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो पे कर रही है उसकी मतलब एक्चुअल वैल्यू से वो गुडविल में जाएगी. बट कंपनीज अपनी भी बैलेंस शीट ऑन रेगुलर बेसिस आउट करती है, तो वो अपनी करंट गुडविल क्या चल रही है वो आउट करती है. और क्या वो सेल्स के नंबर पे डिफाइन होता है कि लाइक जैसे मैगी है वो ₹14 की है, और वो और मतलब और जो प्रोडक्ट है उनसे महंगी है, तो वो एडिशनल जो महंगी है इनटू द सेल्स नंबर वो गुडविल कहलाती है क्या? नहीं, गुडविल को ऐसे मतलब एकदम इतनी क्रूड वे में डिफाइन नहीं करता. यूजुअली तुमने जो अकाउंटिंग में पढ़ा है, दीज आर जस्ट मैथ्स, राइट, टू अराइव एट अ फिगर. अभी जैसे कि तुम गुडविल का वैल्यूएशन करते हो, आई रिमेंबर, आई थिंक क्लास 12 का ही पहला चैप्टर होगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. सो तुम जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हो, देयर हैज टू बी अ बेसिस फॉर व्हिच यू आर पेइंग दैट एक्स्ट्रा मनी टू द कंपनी व्हिच यू आर एक्वायरिंग, करेक्ट? बट
मैगी का सेल्स फिगर, अगेन उसका बिजनेस कैसा है, इट ऑल्सो डिपेंड्स, मतलब कितना प्रॉफिटेबल रहा है वो कंपनी, राइट? तुम्हारा बेसिकली सेल्स से मतलब अगर ये है कि अगर वो बहुत अच्छा फाइनेंशियल, अगर वो प्रॉफिटेबल है वो कंपनी, डेफिनेटली उसकी वैल्यूएशन ज्यादा होगी इन टर्म्स ऑफ अक्वायरिंग। बट अगर वो कंपनी उतनी प्रॉफिटेबल नहीं थी, जस्ट उसका बिजनेस मॉडल अच्छा था या आइडिया अच्छा था, फाउंडर्स ने ठीक से काम नहीं करा, एंड यू एज अ बिगर कंपनी हैज बेटर प्लान्स टू एग्जीक्यूट इट इन अ बेटर मैनर, तब उसका गुडविल का वैल्यूएशन ऑब्वियसली कम हो जाएगा, विच अगेन ट्रांसलेट्स टू योर लॉजिक ऑल्सो, कि जो हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेथड या कैपिटलाइजेशन मेथड लाते हैं, तो बेसिकली वी आर अकाउंटिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच दे आर मेकिंग एंड वी आर अप्लाइंग सम मैथ्स टू इट, राइट? बट अगर वो लॉस मेकिंग है या बहुत ही ब्रेक इवन पे चल रहा है, तब उसका गुडविल वैल्यूएशन आई डोंट थिंक कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट या कैपिटल पे लग पाएगा। आई डोंट नो इफ दैट वाज योर क्वेश्चन, इफ आई वाज एबल टू आंसर, Okay. और वी कैन Yeah. डिस्कस बट तो लाइक ये सब्जेक्टिव नहीं हो जाएगा, लाइक जैसे मैं अपनी Jatin, I'll किसी come to that. Jatin, hear me out. So, Sure. to add to Ayush's point, okay, primarily you don't do that. Okay, so let me put it very simply. Okay, just because let's say you are selling Maggie for 10 rupees, I am selling let's say Yippee for 8 rupees. Okay, I am anyways booking the additional amount here as my profit, correct? Let us say that my cogs are 6 rupees and the cogs for Yippee is let's say 5 rupees. So they are let's say bringing a profit of 3, I am bringing a profit of 4. ये जो profit है, ये profit वापस से मेरे बैलेंस शीट में प्लग इन होता है रिजर्व एंड सरप्लस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यस सर, करेक्ट? तो मुझे इसको गुडविल में डालने की जरूरत ही नहीं है. There is no point actually adding it to the goodwill, no? Getting my point? So primarily, one thing that you should understand is that in in common accounting practices, you generally put it in case of an acquisition element. Okay, whenever you put it without an acquisition element, you must have a very strong logic to it. Okay, otherwise you do not need to do it. I'm hoping कि समझ में आया होगा कि कोई भी उठा के गुडविल डाल दे रहा है, ठीक है? अचानक से एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग किया, सब लोग बात करने लगे मेरे कंपनी के बारे में, तो गुडविल डाल दिया. वैसे नहीं चलता है. दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स. क्लियर हुआ? यस सर, श्योर सर. राइट. सो आई एम होपिंग दैट पार्ट इज क्लियर टू यू. जतिन, तो अच्छा, एक और चीज जतिन ने बड़ी इंटरेस्टिंग बोली कि ये तो बड़ा सब्जेक्टिव हो जाएगा. कितने लोगों को लगता है कि फाइनेंस ऑब्जेक्टिव है? आई मीन इफ यू ट्रूली थिंक दैट फाइनेंस इज एब्सोल्युटली ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. फाइनेंस बिल्कुल ऑब्जेक्टिव नहीं है. फाइनेंस के अंदर भी सब्जेक्टिविटी होती है, ठीक है? आई एम होपिंग कि समझ में आएगा. बट एज फार एज गुडविल इज कंसर्न्ड, दैट इज नॉट हाउ यू कैलकुलेट गुडविल. ठीक है, कि मार्केट मेरे को प्रीमियम कर दे रही है किसी चीज का, तो मैं उसको गुडविल नहीं डालता हूँ. दैट इज नॉट हाउ यू डू इट. आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा. राइट. लेट मी मूव टू तन्वी गो अहेड. Hello, good evening, sir. Yeah. So can you hear me? Yeah, go ahead. So actually, I don't know if I got confused, but at one point you said, the discussion may be that the assets minus liabilities is equity. But अभी जब goodwill का भी conversation हुआ, तो it was also mentioned कि assets minus liabilities equal to goodwill. इतना कॉम्प्लिकेट मत करो, मैं बहुत सिंपल बताता हूँ, ठीक है? देखो भाई, ठीक है, जो जितने भी मेरे टाइप के लोग हैं, इंजीनियर्स, जिनका फिनेंस से कोई बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं है, बहुत सिंपल समझो, बहुत बेसिक समझो, ठीक है? आपका अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से जब आप कोई कंपनी एक्वायर करते हो, है ना, तो उसका नेट वैल्यू क्या होता है? मान लो उसके पास मशीन है 100 रुपए की और उसे लेट्स से 50 रुपए पे करने हैं, उसका पेबल है 50 रुपीज़ का, तो नेट इस कंपनी से तुम्हें कितना वैल्यू मिलेगा? 100 रुपए का इक्विपमेंट है और 50 रुपए तुम्हें पे करने हैं, तो कितना वैल्यू मिलेगा? तन्वी, गो अहेड, सिंपल कैलकुलेशन. 50 रुपीज. अब इसको भूल जाओ. हेलो, 50. हाँ, यस सर. 50 मिलेगा ना, तो ये 50 असल में क्या है? असेट माइनस लाइबिलिटी है. तो ये असेट माइनस लाइबिलिटी दूसरे वाली कंपनी का है, इस कंपनी का नहीं जो अक्वायर कर रही है. यस सर. अब ये जो 50 रुपीज है, इस 50 रुपीज के एसेट को तुमने 20 रुपया प्रीमियम देके खरीद लिया 70 रुपीज में, तो तुम्हारे कैश से कितना कम हो गया? 70. यस. तुम्हारे कैश से कितना कम हो गया? 70. और तुम्हारे एसेट में कितना ऐड हुआ? उसका वैल्यू तो 50 है ना, तो तुम्हारे एसेट में
तुम्हारे एसेट में ऐड हुआ यहाँ पे 50, और यहाँ पे करंट एसेट्स में मतलब तुम्हारे कैश में से निकल गया 70, तो बैलेंस कितना नेगेटिव हो गया 20, तो वो 20 तुमको गुडविल में ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ गया? सिंपल 20. क्लियर हुआ Okay, sir. है ना? आई एम होपिंग कि Yes, इतना sir. कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए। करेक्ट, it's absolutely simple that way. I'm hoping that it makes sense. Is it clear? So if you understand it very very simply, do not complicate it. Okay. Also, guys, goodwill Okay, is a sir. concept. You wouldn't be seeing a lot of goodwill stuff once you start analyzing the balance sheets. अगर तुम comparative study करोगे कॉलेज में, थोड़ा बहुत जो प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाओगे, बहुत बड़ा कंपोनेंट नहीं होता है। मतलब अभी भी मुझे I haven't the sector that in which I am working right now. However, as a concept, इसको पता होना चाहिए कि मार्क दिया bill लगाने के लिए, बट उतनी घबराने वाली बात है नहीं ऐसा कुछ। Yeah. Okay. Devrat, go ahead. Good evening, sir. Yeah, good evening. Sir, adding on to the previous example itself, while I understand that if something is reducing in the bank balance because we are buying something, it will be distributed into asset as well as goodwill for whatever it has been purchased. Now, goodwill is an intangible asset. So, and we've also understood that asset is something that will generate cash flow for us. Correct. Can goodwill generate cash flow for us? First question. And second, like other assets, does goodwill also appreciate or depreciate with time? Okay. So let me answer the first question first, but let me first move to Ayush. Ayush, what's your view on this? And then let me put in a couple of pointers as well. So first answer, I think you'll be the master one. So basically, Devrat, if you know any asset, चाहे tangible हो चाहे intangible हो, they suffer depreciation, depletion और amortization. अब तीनों का मतलब क्या होता है? तीनों का मतलब सेम होता है कि जो एसेट तुम्हारे ईयर 1 डे 1 में जो प्राइस पे रहेगा, जिस वैल्यू पे रहेगा, वो 365th डे बेसिकली अकाउंटिंग ईयर के एंड में वो सेम वैल्यू पे नहीं रहेगा। ठीक है? जो टैंजिबल एसेट्स होते हैं, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट एक्सेट्रा, फर्नीचर, ये सारे डेप्रिसिएशन, उन सब में डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है? अगेन डेप्रिसिएशन लगाने का बहुत डिफरेंट तरीका होता है, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, और इवन इंडस्ट्री वाइज डेप्रिसिएशन का परसेंटेज भी वैरी करता है, 5%, 8%, 12%, 15%, जो भी। ठीक है? जो इनटैंजिबल एसेट्स होते हैं, वेरी गुड एग्जांपल इज गुडविल, उस पे अमोर्टाइजेशन लगता है। सेम कॉन्सेप्ट, डिक्रीजिंग द वैल्यू। ठीक है? और जो थर्ड कॉन्सेप्ट मैंने बोला, डिप्लीशन लगता है अगर तुम्हारा कंपनी इज नेचुरल रिसोर्सेज में तुम्हारा अगर प्ले है, अगर तुम उस सेक्टर में खेल रहे हो, अगर कोल इंडिया हो, तब वहां पे डिप्लीशन लगता है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज में डिप्लीट करता है। ठीक है? उसमें डिप्रिसिएशन नहीं, बट द कॉन्सेप्ट इज सेम। बुक वैल्यू साल के एंड में कम हो जाती है, दैट इज व्हाट, एंड इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। वो कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ोगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा, इवन पीएनएल भी पढ़ोगे तो वहां पे भी समझ में आ जाएगा। No, that's sir. why we call it EBITDA. अगर तुम अभी Yes. वैसा उस टर्म को मेरे जानते को हो, तो the A EBITDA stands पता है. for Yes. A stands for amortization. Yes, sir. So I'm not from a finance background, but still I had a basic idea, so इसलिए I asked this query. Good नहीं, that you know. good, Devrat, also to add to the first pointer you said कि ये तो intangible asset है, so what does it mean? Does it generate cash flow? See, very simple. Okay, I bought a machine for $50, right? Because of which I accumulated a goodwill of $20. I've accumulated a goodwill of $20 which is associated with this equipment, correct? तो Yes, sir. ये जैसे ही इक्विपमेंट जाएगा मेरे सिस्टम से, ये $20 भी मेरे सिस्टम से राइट ऑफ होगा, इफेक्टिवली ये अमोर्टाइज होगा, और जो $50 में तो मेरा जो इक्विपमेंट है वो डिप्रिशिएट होगा। सबको समझ में आया डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन क्या होता है? जो तुम्हारा Yes, sir. है इफेक्टिवली उसका एक यूजफुल लाइफ होता है। जैसे मान लो $50 का एसेट है, उसका यूजफुल लाइफ 5 साल है। ठीक है? तो अगले साल उसका इफेक्टिव वैल्यू क्या हो जाएगा? $40। फिर Okay, अगले sir. साल उसका इफेक्टिव वैल्यू हो जाएगा $30, फिर $20 हो जाएगा, फिर $10 हो जाएगा, और फाइनली 0 हो जाएगा। और फिर हम इसको क्या कर दिया? खत्म हो गया, सिस्टम से निकाल दिया। सिमिलरली $20 भी Yes, sir. इसके साथ एसोसिएटेड है
और ये क्या होगा, ये भी अगर फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से अगर हम चलें, मतलब सिंपल बेसिक तरीके से, तो ये भी क्या होगा, $4 करके सिस्टम से एमोर्टाइज हो जाएगा। द टर्म दैट वी यूज इज एमोर्टाइज। ठीक है, तो $4 करके 5 बार में उस सिस्टम से एमोर्टाइज होके राइट ऑफ हो गया। नाउ हम अर्निंग कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस मशीनरी, करेक्ट? हम अर्निंग कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस Yes, sir. मशीनरी। ये मशीनरी हमको मिलती नहीं अगर हम ये $20 नहीं देते तो। मेरे को बात बताओ, अगर कोई मशीनरी $50 की है तो सेलर $50 में सेल करेगा? नहीं, That's the point. I have gotten this he won't. machinery because of the $20 additional investment that I've done. The premium that I have paid for that machinery is the reason why I have that machinery in the first place. And therefore, Yes, sir. this $20 is actually generating cash flows for me. I'm hoping you समझ में आया होगा. Yes, sir. Understood. Thank you. Yeah. Okay. Sarang, go ahead. सर जैसे कि अभी यहाँ पे डिस्कशन हुआ कि एसेट्स डिप्रिशिएट होते हैं और उसके साथ गुडविल भी गिरती जाती है, बट कुछ एसेट्स ऐसे भी होते हैं ना जो अप्रिशिएट होंगे, तो उस केस में ऑपोजिट होता है क्या सब? सो बेसिकली लैंड के बारे में तुम बात कर रहे होगे, तो जो राइट लैंड राइट है वो डिप्रिशिएट नहीं होता है, ठीक है, लेकिन लैंड को हम इफेक्टिवली सेम वैल्यू पे ही रखते हैं, ठीक है, उसको हम बुक वैल्यू पे ही रखते हैं, ठीक है। ओवर अ पॉइंट इन टाइम इफ द कंपनी बिलीव्स एंड द अकाउंटिंग टीम और द अकाउंट्स टीम बिलीव्स कि हमें इफेक्टिवली इसको इंक्रीज करना चाहिए इसका वैल्यू, बुक वैल्यू, तो फिर आपका एक एडिशनल कंपोनेंट यहाँ पे आता है विच इज नोन एज रीवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है। तो वो क्या होता है कि अगर मान लो $18 पे है, इसको अगर हमने रीवैल्यू करके $25 कर दिया, तो फिर क्या यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका एडिशनल आ जाता है, जो भी आपने इंक्रीज किया है वो रीवैल्यूएशन रिजर्व में ऐड हो जाता है। आई एम होपिंग कि सबको समझ में आया। जनरली आपका लैंड का वैल्यू अप्रिशिएट होता है, लेकिन आप उसको बुक वैल्यू पे ही रखते हो, समझ में आया? है ना? उसको उसको तो क्या इस करते पे हैं, कोई उसको लीगल एक्शंस होते हैं? क्या क्या, गो अहेड गो अहेड। कुछ लीगल एक्शंस नहीं होते क्या कंपनी पे कि इफ वी आर जो मार्केट वैल्यू है लैंड की वो ना रख के हम बुक वैल्यू ही रखते हैं तो? मेरे दोस्त, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों अलग अलग चीजें हैं। बुक वैल्यू है एज इज, मार्केट वैल्यू डिपेंड करता है फ्यूचर कैश फ्लोज पे। मार्केट वैल्यू also known as the market capitalization is effectively calculated on the basis of future cash flows of a company। किसी कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में तुमने सुना होगा, शार्क टैंक कितने लोग देखते हैं यहाँ पे, कितने लोग शार्क टैंक, उसमें वैल्यूएशन के बारे में बात होती है। सी वैल्यूएशन इज इफेक्टिवली फ्यूचरिस्टिक इन नेचर, कि फ्यूचर में कैश फ्लोज जो होंगे उस हिसाब से आप उसको कैलकुलेट करते हो, वो होता है मार्केट वैल्यू या मार्केट कैपिटलाइजेशन। बुक वैल्यू इज एज इज, जो प्राइस है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है, ठीक है, टिल अ पॉइंट इन टाइम जब कंपनी को भी लगने लगता है कि भाई ये लैंड जो है हमने यहाँ पे 18,000 डाला हुआ है और ये 2,18,000 हो चुका है, ठीक है, तो कंपनी भी उसको रीवैल्यू करती है रीवैल्यूएशन रिजर्व में एडिशनल अमाउंट डाल के। समझ में आया? या ओके, ऑल राइट, okay okay वैभव is saying कि मशीन is still functioning and it gets write off। so वैभव देखो बहुत सिंपल है, अपना जो डिप्रिसिएशन का जो थॉट प्रोसेस है उसको हम ट्वीक कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने पहले एस्टिमेट किया था कि भाई 5 साल है उसका यूजफुल लाइफ, पर ऐसा लगता है लेट्स से कि नहीं ये 5 साल से ज़्यादा है, लेट्स से लगता है कि 8 साल है, तो हम डिप्रिसिएशन फिर उस हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो वो इफेक्टिवली तुम्हारा मैनेजमेंट अजम्पशंस के ऊपर डिपेंड करता है। कैन वी वेरी द डिप्रिसिएशन परसेंटेज? आयुष, देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ एक्चुअली टेकिंग इट इनटू अकाउंट। जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर मल्टीपल मेथड्स, WDV मेथड है, SLM है, तुम्हारा स्ट्रेट लाइन मेथड है, लेकिन अभी के लिए सिंपल रखते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड समझते हैं, बहुत ज़्यादा उसके कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाते हैं, बेसिक रखते हैं अभी इसको, ठीक है, कि होता क्या है उसके बारे में बात करें, ठीक है। अथर्व, गो अहेड। Oh, yes, sir. So actually, I had 2 questions. Firstly, does every purchase of any company or an entity have a goodwill component in it? एवरी परचेज मतलब अब तुम फॉर एग्जांपल अपने लिए इन्वेंट्री खरीद रहा है, उसमें गुडविल No, not every.
purchase in the sense every organizational purchase. For example, Acquisition. one organization is purchasing another organization. So does every such purchase contains a goodwill component in it? Ayush, would you want to go? Yeah. देखो, एक तो सबसे पहले कि this merger and acquisition thing is not a very common phenomena happening in companies. So ये once in a while वाला चीज है, and not necessary first of all कि हर बार goodwill रहे ना रहे या फिर उसी markup पे रहे, depend करता है यार, मतलब हो भी सकता है इट कैन डायरेक्टली परचेज एट द बुक वैल्यू, जो भी उसका नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स है बेसिकली, जो हम लोगों ने 100 रुपीज का बिल्डिंग था, 50 उसका पेबल था, माइनस करके जो 50 रुपए का नेट आइडेंटिफाइबल था, उस पर भी परचेज हो सकता है या फिर गुडविल रहता है, डिपेंड करता है ऑल्सो। जो अक्वायर कंपनी एक्वायर हो रहा है उसका भी रेपुटेशन या फिर फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, बेसिकली एक्वायर होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, राइट? या तो एक तो है कि मॉडल में गलती है, फाउंडर सही नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि हाउ मच इज द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। बट अगेन दैट्स अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, तो जब हम वैल्यूएशन पे आ जाएंगे मतलब। एंड सो अगर ऐसा कोई सच लाइक इशू लाइक व्हाट मार्केट रेपुटेशन वगैरह खराब हो या फाउंडर इज नॉट करेक्ट व्हाटएवर, सो इन दैट केस इज देयर एनीथिंग कॉल्ड एज नेगेटिव गुडविल और बैड विल? देखो, लेट मी अथर, देखो दो चीजें हैं। ऐसा भी हो सकता है कि गुडविल ना हो, ठीक है, सिंपल बात है। मान लो फॉर एग्जांपल 50 रुपए का एसेट है, तुम्हें एग्जिट करना है जल्दी से, तुम्हें $40 भी चलेगा, तो तुम $40 में देके निकल गया, ठीक है, करेक्ट, तो फिर मैं उसको $40 पे ही रिकॉग्नाइज कर लूंगा अपने एसेट साइड में। तो आई विल रिकॉग्नाइज इट एट माई एसेट साइड फॉर $40 और मेरा कैश से $40 कम हो गया, तो कोई गुडविल नहीं है। समझ में आया? अगेन डिपेंडिंग अपॉन द फाउंडर गुडविल डिसाइड नहीं होता है कि फाउंडर खराब है तो गुडविल बैडविल हो जाएगा। सी, वन थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन द टर्म गुडविल विच इज रेप्यूटेशन एंड द फिनेंशियल एलिमेंट विच इज गुडविल, ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, डू नॉट कंफ्यूज। रेप्यूटेशन नहीं है गुडविल, लेट अस अंडरस्टैंड इट वेरी सिंपली, इट इज नॉट रेप्यूटेशन, इट इज नॉट ब्रांड पावर और ब्रांड इक्विटी, सिंपल, ओके, दैट्स वन वे ऑफ पुटिंग एट इट, बिकॉज अदरवाइज इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन योर माइंड, ठीक है, टिल अ पॉइंट But that must be a component while calculating goodwill, right? what will have Reputation. Absolutely not. A reputation would Absolutely not. ऐसा भी हो सकता है कि उस कंपनी का रेप्यूटेशन खराब है लेकिन फिर भी मेरे को उसकी मशीनरी खरीदनी है, सिंपल बात है भाई, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, लेट्स से हाउ मेनी ऑफ यू हैव ट्रैवल्ड विद स्पाइस जेट? कितने लोगों ने स्पाइस जेट से ट्रैवल किया है यहाँ पे, स्पाइस जेट से ट्रैवल, ठीक है, ऑल द ब्रेव पीपल एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करें कितने ब्रेव लोग हैं यहाँ पे, बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस भी कराया होगा आई एम श्योर आप सब लोगों ने, करेक्ट। तो अब मान लो फॉर एग्जांपल लेट्स से आई एम इंडिगो, ओके, अब जैसे मैंने स्पाइस जेट का नाम लिया बहुत लोग हंस पड़े, ठीक है। सर वैसे तो बोइंग को लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत है क्या? वैसे तो बोइंग को लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत है। नहीं, लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत वैसे बहुत सारे प्लेन कंपनीज एंड एयरप्लेन कंपनीज को पड़ती है बिकॉज ऑफ वेरी हाई फिक्स्ड कॉस्ट्स। बट एनीवेज कमिंग टू स्पाइस जेट, अब स्पाइस जेट का मान लो रेप्यूटेशन खराब है, ठीक है, लेकिन इसके पास कुछ एसेट्स हैं, एज इंडिगो मेरे लिए यूजफुल हो सकता है, समझ में आया? तो रेप्यूटेशन इज नॉट नेसेसरली द रीजन फॉर गुडविल, इट मे बी माई यूज केस, वो चाहे कबाड़ है लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? इट समझ रहा है, बहुत सारी चीजें तुम फॉर एग्जाम्पल लेट्स से सिर्फ सेंटिमेंटल वैल्यू के लिए भी कई बार खरीद लेते हो, करेक्ट होता है ना? यस यस, है ना, प्रोमोटर के बेटे ने जिद कर दिया कि लेना ही है लेना ही है लेना ही है, तो बस हो गया, फिर काम खत्म, लेना पड़ेगा, उसका रेप्यूटेशन से कोई लेना देना नहीं है इसका, करेक्ट। सो देयर इज अ लेवल ऑफ सब्जेक्टिविटी टू इट एज वेल, क्लियर है ना? गॉट इट सर। Also, there is one thing which is one of the drawbacks of accounting and finance, that we ignore the qualitative aspects whenever we are preparing the books of accounts. For example, भी reputation की एक बात हो गई, secondly हो गया तुम्हारा ऑफिस का कल्चर अच्छा नहीं है, या फिर तुम्हारे ऑफिस में खाना अच्छा नहीं मिलता, समोसा अच्छा नहीं मिलता, जिसके कारण तुम्हारी प्रोडक्टिविटी गिर जा रही है, बढ़ जा रही है,
we don't take these all things into account. So this is also one thing. It's all about quantitative aspects in accounting, and we ignore all the qualitative aspects. एब्सोल्युटली, है ना? इफ फॉर एग्जांपल लेट्स से कहीं पे समोसे में तेल ज़्यादा है तो उस वजह से कंपनी को गुडविल नहीं मिल रहा है, करेक्ट? ओके, निखिल गो अहेड। हेलो सर, मेरे दो क्वेश्चन है वैसे। पहला क्वेश्चन कि अगर मैं फॉर एग्जांपल $100 का फर्नीचर खरीद लूँ अपने ऑफिस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ओके उसके लिए मैं $100 का लोन ले रहा हूँ। एट द ओके एंड ऑफ द ईयर वो फर्नीचर की वैल्यू डेप्रिशिएट होकर $90 हो गई है ओके या फिर 99, और इस तरफ मेरा जो लोन अमाउंट है वो 10% मेरे को इंटरेस्ट लगा है, तो वो बैलेंस आउट कैसे होगा? देखो और बहुत सिंपल है भाई, ठीक है? हाँ, पहला तुम दोनों पूछ लो फिर डिस्कस करते हैं। बताओ, दूसरा बताओ। गुड वो क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि गुडविल जो है, अगर मैंने गुडविल के तौर पे मेरे असेट की वैल्यू मैंने एस्टिमेट लगाई $50 आएगी, और मैंने गुडविल के लिए उसको और $20 एक्स्ट्रा पे कर दिया। ऐसा कोई केस है कि उस केस में कि गुडविल नेगेटिव चीज हो गई है, मतलब मैंने एक्स्ट्रा पे कर दिया है और वो उतना वैल्यू का नहीं रहा असेट? उतना वैल्यू का नहीं रहा मतलब? उतना वैल्यू तुम पहले फॉर असेस एग्जाम्पल, करके तभी पे किया ना? हाँ मतलब मैंने ओवर एस्टिमेट कर दिया वो। हाँ, तो जो तुमने ओवर एस्टिमेट किया सब गुडविल है। तुमने मान लो फॉर एग्जाम्पल, देखो बहुत सिंपल बात है भाई, तुमने रियलाइज किया कि 50 रुपीज पे है, ओके करेक्ट? उसके बाद तुमने बोला कि भाई 20 है, फिर बोला नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो, दिस इज 40, सो देन यू पुट 30 ईयर। ओके सिंपल है। अच्छा, अभी पहला वाला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। लेट्स मूव टू आयुष। आयुष, पहला वाला क्वेश्चन काफी काफी इंटरेस्टिंग, और ऑलमोस्ट हर सीजन में ये वाला क्वेश्चन आता ही है। हाउ यू गो अबाउट इट? So question was कि मशीनरी was of 100 rupees ईयर के स्टार्टिंग में, एंड में डेप्रिसिएशन लग के 90 रुपीज का हो गया है, और मेरा जो लोन था वो 110 रुपए का हो गया है, राइट? सो डेप्रिसिएशन, like I said earlier, is an expense, is a non-cash expense, correct? अगर मेरा प्रॉफिट जो बन रहा है साल भर में, सपोज 500 रुपीज का बन रहा था, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टूपिड असेट मेरा 10 रुपए का प्रॉफिट कम हो जा रहा है, करेक्ट? और प्रॉफिट अल्टीमेटली किधर आ जाता है बैलेंस शीट में? रिजर्व्स एंड सरप्लस के तौर पे, राइट? तो नेट इम्पैक्ट क्या हुआ? मेरा 10 रुपए से एसेट घट गया, और मेरा 10 रुपए से रिजर्व्स एंड सरप्लस या मेरा प्रॉफिट भी घट चुका है, यानी ओवरऑल बैलेंस शीट मैच कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, करेक्ट? दैट्स द बेसिक फंडा। ओके क्लियर हुआ ना? सो बहुत सिंपल है राइट? हाँ तुम्हारी, है ना? यस तो जो तेरा डिप्रिसिएशन है वो इफेक्टिवली तेरा पीएनएल का कंपोनेंट हो गया, वो एज एन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज हो गया, और प्रॉफिट को कम कर दिया। यहाँ पे तुम्हारा एसेट साइड में $10 से कम हुआ, और यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस में $10 से कम हो गया, तो तुम्हारा बैलेंस शीट बैलेंस रह गया। आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? यस ब्यूटिफुल। ओके, थैंक यू। सो ओके, आई एम होपिंग दैट, ओके, let's take Bishesh's question. Bishesh, go ahead. सर, रीवैल्यूएशन के बाद शीट कैसे बैलेंस होगा, मतलब वो समझ नहीं है। रीवैल्यूएशन के बाद शीट बैलेंस हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे लैंड तुम्हारा 18 पे है, ठीक है? इसको तुमने 22 पे कर दिया, ओके? तो तुमने कितना बढ़ाया? $4। $4 तुम यहाँ पे रीवैल्यूएशन रिजर्व में डाल देगा। वॉइस इज ब्रेकिंग। Am I audible? Am I audible to you, Vishesh? Just breaking initially, now it's fine. Is it हाँ, okay? Yeah, अभी yeah. आ रहा है। हाँ हाँ। सो बहुत से, इफ आई पुट इट वेरी सिंपली, तो मान लो मेरा लैंड 18 पे था, उसको मैंने इंक्रीज करके 22 पे कर दिया, ठीक है? ओके, तो मेरा जो एसेट साइड है वो कितने पे पहुंच गया? 100 से 104 पे पहुंच गया। यस, मैंने रिवैल्यूएशन रिजर्व में $4 डाल दिया, तो अब तुम्हारा इक्विटी प्लस लाइबिलिटी साइड कहाँ पे पहुंच गया? 100। हो गया बैलेंस। यस, तो मतलब जो भी सरप्लस वो आएगा वो रिजर्व एंड सरप्लस वाले सेक्शन में जाएगा। नहीं, रिवैल्यूएशन रिजर्व अलग है, ठीक है? ओके तुम्हारा उस स्पेसिफिकली रिवैल्यूएशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। ओके ओके ओके, गॉट इट सर। हाँ, ठीक। Okay? बहुत तरह के रिवैल्यूएशन रिजर्व्स होते हैं बिसाइड्स रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस इज स्पेसिफिकली प्रॉफिट से मान के चलो, करेक्ट। और ये रिवैल्यूएशन रिजर्व्स या फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये कुछ तरह के हम लोग रिजर्व्स रखते हैं
फॉर दीज ऑल थिंग्स, बेसिकली रिवैल्यूएशन करने पे या फिर कुछ पैसा मेरा लास्ट में डूबेगा, हम लोग ये भी एक मान के चलते हैं बेसिकली, जो हम लोग क्रेडिट में सेल करते हैं राइट 100 रुपए का, तो ईयर के एंड में जरूरी नहीं कि मुझे 100 के 100 वापस मिलेंगे, मेरा कुछ X% डूबता ही है राइट एज बैड डेट्स, तो उसका भी एक रिजर्व बन के रहता है, तो वो सब यहाँ पे आता है। तो सर रिजर्व एसेट और लायबिलिटीज में नहीं आता क्या, मतलब दो नहीं, कैटेगरीज? लाइबिलिटी में ही आता है, बट वो ओके अलग से बना के रखते हैं हम लोग, एक प्रोविजन बना के रखते हैं कि मेरा कुछ परसेंट घटेगा, मतलब पैसा नहीं आएगा, डूबेगा राइट, तो उस केस में यस भी मेंटेन सम रिजर्व्स। ओके अंडरस्टूड, थैंक यू। Okay, so now, friends, we've come to the conclusion of the first session. Since we all have to now go, and very quickly, two things that we all should do. सबसे पहले, what we should all do as a homework assignment is, one, take up any organization which is your dream company, and understand the annual report. So try to read the annual report, specifically read the balance sheet, okay? तो आपको दो चीजें करनी है, एक बैलेंस शीट पढ़ देना, and second, try to read P&L also, because in the next session we will get into P&L and the cash flow statement also. So we'll talk about P&L, so read P&L as well as cash flow statement, and beyond that, as part of annual report, read the MDA section also, which is management discussion and analysis. That is also an important element which is there. So I'm hoping that the homework part is absolutely correct. Okay. Okay, I'm hoping that part is clear. Okay, Kanchan is saying depreciation, between amortization and depreciation. Kanchan, we've already explained. So depreciation is for tangible assets and amortization is for intangible assets. Okay, I am hoping that this part is clear to you. So this is MDA, so we have to read the MDA part, and also inside the annual report, read the balance sheet, try to make sense of that balance sheet, and also try to read P&L and cash flow. In the next session we'll talk about P&L cash flows, and then in the next session we will move to the ratios and other important elements. I'm hoping that it's a decent start to effectively create a spark so that we can all start understanding a little bit about finance. I'm hoping that this was enjoyable. Ayush, any final inputs before we let them all go? Yeah, definitely the assignment, which is annual report padna, especially the whatever we have discussed so far, just look at the contents, the particulars, the items which are there in the balance sheet. अभी in-depth notes to account वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है. Just have a look at it, sensitize yourself with the concept. That is the first exercise you should do. Secondly, I hope, first of all, the people who are coming from the commerce or economics background, को थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा basically अभी ये session करके. Just revise whatever we have discussed, the concepts we have spoken about it. वो एक बार देख लेना. And before we start the P&L session, एक बार just the snapshot of the P&L account, just have that thing handy. एक बार पढ़ लेना, देख लेना. अभी notes, मतलब वो in-depth analysis करने की जरूरत नहीं है, वो खामखा वो तुम्हें फिर डरा ही देगा. So we'll have this discussion further and we'll have a wonderful session like every year. Yep. So I'm hoping, guys, it was fun, and for us also it was a lot of fun interacting with all of you, and the entire amazing discussion on goodwill and the other important components. Okay. Shritik is saying, can you give us company? Acha, can you give us a company? Okay. That's there is a difference. All right. Shritik, any company. You can pick up any company. Hindustan Unilever ले लो, ठीक है, ITC ले लो, जो तुम्हें ठीक लगे. Asian Paints ले लो. अभी अवॉइड करना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे जाने का, बैंक्स वगैरह और इंश्योरेंस पे अभी मत ट्राई करना कि उसको मत रखना, उसका अकाउंटिंग और थोड़ा अलग रहेगा. या सो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को अवॉइड करना है, बिकॉज वी विल हैव अ सेपरेट डिस्कशन ऑन बैंकिंग एंड द एंटायर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. वो काफी अलग ऑपरेट करता है, ठीक है. सो टेक अप एनी FMCG आप ले लो, कोई भी, दैट विल बी अ गुड लर्निंग. ओके. All right. So, दोस्तों, thank you so much for joining. It was lovely interacting with all of you. That's your first finance session. Hoping to see you all in the next finance session also, with a lot of energy and enthusiasm, and do come prepared. God bless. Take care and bye-bye. Thank you, Ayush, for this amazing session. Thank you so much, guys. Thank you, Bhaiya. God bless. Bye-bye.
and we'll start the HR review.